रेजिडेंस। तो आई होप रेजिडेंस के बारे में बताया गया था। अंडर द रेजिडेंस first of all you have decide the residence, the related person, that means is the first topic discuss the residence of SAC. Residence SAC. Residence SAC. First of all, discuss the residence SAC, then decide the tax liability. These are different types of residence. So basically, is a flow chart right now. Type of residence. Type of residence is a two type: resident and non-resident. Type of residence is a two type: resident and non-resident. Resident divided into two parts. जो रेजिडेंट होगा उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके वो दो पार्ट क्या क्या होंगे? पहला होगा ऑर्डनरी। पहला कौन सा होगा? ऑर्डिनरी। ऑर्डनरी। और दूसरा होगा नॉट ऑर्डनरी। Ordinary resident and not ordinary resident. Ordinary and not ordinary resident. The first statement write down related to concept of residence. Is the first statement write down. SAC may earn his income. SAC may earn his income. अबे किसका गेट बंद कर दो यार। किसका ऑफ करो, पहले फोन ऑफ करो। किसका पॉज करो। अरे सागर SAC may earn his income any sum of his income in India, his income in India or outside India or at both place. तीन सिचुएशन बताई जा रही कि कोई भी एसएसी जो है बेटे वो इनकम को अर्न कर सकता है कहाँ? इनसाइड एंड आउटसाइड एंड बोथ साइड। अब विच इनकम इज एसेसेबल, लिखिए इसकी में आगे, विच इनकम इज एसेसेबल इन इंडिया। हमारा क्वेश्चन क्या है? विच इनकम is accessible in India depends on the residential status of an SAC. Depends on the residential status of an SAC. ऑफ एन एसएसी। ठीक, अब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक एसएसी की जो इनकम है वो अर्न कहीं पर भी की जा सकती है, इन या आउट या बोथ। तो विच एसेसेबल इनकम,
चीज डिपेंड करेगी किस पर, रेजिडेंशियल स्टेटस पर ऑफ एन एसएससी कि उसका स्टेटस क्या है, देन यू हैव डिसाइड टैक्स लायबिलिटी। हाँ, Yes, sir. that means overall statement explain, we can say that total income of SSC along with his residential status is determined with the difference to the his residence in India in the previous year। हमें कब पे फाइंड आउट करना है, प्रीवियस ईयर, क्योंकि हम इनकम कौन से लेते हैं, प्रीवियस ईयर, और उसको करंट ईयर में उसका हम टैक्स पे करते हैं। So this different type of aspect is the first type of resident and non-resident, and then under the resident two category, ordinary resident and not ordinary resident। First of all discuss the individual, इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में जानेंगे। The residence of an individual on the basis of rules। Under the rules, two type of condition is given: basic condition and additional condition। हाँ, ये जो रेजिडेंस स्टेटस है, इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक कंडीशन and second additional condition। First of all, you have write down the basic condition is the first point under the basic condition, 182 days in a previous year is the first condition related to basic, 182 days in a previous year, 182 दिन गत वर्ष। And second basic condition, he has been in India at least, मतलब एसएससी, हाँ एसएससी के लिए बोला जा रहा है, एसएससी has been in India for at least 365 days during the 4 years preceding the previous year। Yes, sir. 4 preceding previous year, है ना? And is in India for at least 60 days during the previous year। During the previous year मतलब ये दूसरी कंडीशन ये कह रहे हैं कि 1 year that means 365 days, preceding 4 previous year plus 60 days in previous year। मतलब जो करंट जिस प्रीवियस ईयर की इनकम हम काउंट कर रहे हैं बेटे, कंप्यूट कर रहे हैं, उसमें 60 डेज होना चाहिए, और उसके पिछले प्रीवियस ईयर है, पिछले 4 साल आउट ऑफ 4 ईयर, उन 4 सालों में कम से कम 1 साल। 365 days that means 1 year, 1 year out of 4 year preceding 4 previous years। लेकिन जो जिस ईयर की इनकम हम कंप्यूट कर रहे हैं उस पीरियड में उसको कम से कम 60 दिन रहना मस्ट, दैट मीन्स 2 months, दैट मीन्स 2 months। बेसिक क्लियर हो गई आई होप।
अब हम राइट डाउन करेंगे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन उसमें भी दो बताई जा रही है। अंडर द एडिशनल भी टू कंडीशंस इज गिवन। सर ये जो 60 दिन वाली कंडीशन है ये उसी साल के लिए जिस साल की इनकम कंप्यूट हो रही प्रीवियस ईयर या करंट ईयर? नहीं करंट ईयर में तो पे करेंगे। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो मार्च टू अप्रैल होता है ना? हाँ तो उस अप्रैल हिसाब टू से- मार्च। हाँ अप्रैल टू मार्च। तो उस हिसाब से जो लास्ट के आप बता रहे हैं जो 60 डेज मतलब लास्ट की मतलब जनवरी फरवरी में होना चाहिए। अब जैसे अभी में कौन सा ईयर है ये? 2021। हाँ जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये अगर मान लीजिए 20 हम ले लें 2020, ठीक है 21 कर दीजिए। 20 to 21 20 कर दें पहले प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। तो ये 1920 हुआ क्यों भाई? 1920 हाँ 29 फर्स्ट 2019 से यस सर। स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2020 में एंड हो जाएगा। एंड होगा। अब इसका जो करंट ईयर होगा वो कौन सा होगा? 1 अप्रैल 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021। That is previous year, that is current year. यस सर। ठीक। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने बोला इस इनकम इसकी जब हम कंप्यूट करेंगे बेटे और उसका टैक्स देंगे हम इसमें असेसमेंट ईयर में। हाँ? नहीं असेसमेंट ईयर तो आपका ये होगा शायद आएगा, नहीं ये होगा जिसमें दिया है वो असेसमेंट है वो कुछ नहीं है। कैलकुलेट उस पर करेंगे प्रीवियस ईयर की इनकम पर। ठीक। तो इससे पहले जो प्रोसीडिंग 4 ईयर है 18 19 17 18 16 17 इस तरह से 4 प्रोसीडिंग ईयर, उनमें कम से कम 4 सालों में पिछले 4 गत वर्षों में कम से कम एक गत वर्ष का रहना मस्ट है। ठीक। और जो जिस ईयर हम कंप्यूट कर रहे हैं इसमें 60 डेज रहना मस्ट है उसके लिए। ओके एनी डाउट? बात समझ में आ रही है ना? प्रीवियस ईयर इसमें 60 डेज मस्ट है और इससे पहले पिछले 4 सालों में प्रीसीडिंग 4 ईयर आउट ऑफ 1 ईयर। ये तो उसके लिए बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर के लिए। नहीं तो आप समझ नहीं पा रहे, दो कंडीशन है ना, आप समझिए मेरी बात। बेसिक में दो कंडीशन बताई जा रही है। बेसिक में पहली कंडीशन बताई गई कि 182 डेज प्रीवियस ईयर, इसी प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। इसमें कम से कम 182 दिन रहना उसके लिए जरूरी है, यानी 365 दिन में कम से कम 182 दिन। थर्ड नहीं है वो, सेकंड में 2 ऐड कर दिए उन्होंने। बेसिक की जो सेकंड कंडीशन है उसमें 2 ऐड किए उन्होंने बेटे। दोनों को मिक्स करके कंप्यूट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा डेज को। हमें देखना होगा कि हमारा जो एसएससी है वो गत वर्ष, अभी ये नहीं डिसाइड हो रहा कि ऑर्गेनिक कौन सा है नॉन ऑर्गेनिक, ये नहीं, अभी तो कंडीशंस क्लियर की जा रही हैं। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि बेसिक में 2 कंडीशंस है, फर्स्ट 182 डेज, ठीक। सेकंड उन्होंने बताया कि 1 ईयर आउट ऑफ 4 ईयर प्रोसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर प्लस 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर। मतलब जो करंट का आपका जिसमें कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कम से कम 60 दिन और उससे पिछले सालों में लगभग 4 सालों में लगभग 1 साल। ये मिक्स है, थर्ड नहीं है। कब आप देखिए प्लस करके लिखा है मैंने, सेकंड कंडीशन में 2 कंडीशन एक साथ ऐड है। क्लियर? ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशनल कंडीशन। एडिशनल में भी 2 कंडीशंस हैं, राइट डाउन करिए। पहली है रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। एडिशनल में भी 2 बताई जा रही हैं। आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। पहली है कम से कम 2 साल, पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में
कम से कम 2 साल उसके लिए रहना जरूरी है। तो ये जो 10 है वो कौन से हैं? वो प्रीसीडिंग यानी कहना चाहिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जैसे कि ये वाला जो रेलेवेंट है ना हमारा, इससे रिलेटेड पिछले 10 सालों में, इसको भी ऐड किया जा रहा है उसमें। 9 साल पिछले और 1 साल ये, मिला के 10 साल में कम से कम 2 साल। ओके, एनी डाउट? एंड सेकंड, he has been in India for at least 730 days in all during the 7 previous year. 730 730 का मतलब कितना हो गया? 2 ईयर है ना? तो 2 ईयर out of 7 previous preceding previous relevant year, ये पहली हो गई और दूसरी हो गई 730 days, दैट मीन्स 2 ईयर आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर। ओके, तो आई कंडीशंस क्लियर हो गई। अब आप डालिए हेडिंग ऑर्डरी रेजिडेंट। रेजिडेंट में 2 कैटेगरी है ना, ऑर्डरी को कब कहलाएगा? एक एसीसी ऑर्डरी कब होगा? तो इन केस इंडिविजुअल, हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं पहले बेटे? इंडिविजुअल। तो ही इज सेटिस्फाइड, he is to be satisfied to become a resident in India. हाँ, मतलब कंडीशन ए, ये जो ए है ना, ये बेसिक की ए, बेसिक में 2 है ना, एक ए और एक बी। तो ए के लिए कहा जा रहा है कि ए इज टू बी सेटिस्फाइड टू बिकम अ रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब इंडिया का रेजिडेंट होने के लिए अगर एक कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप रेजिडेंट हो जाएंगे। मतलब 182 डेज अगर आप रह रहे हैं तो आप रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएंगे। सेकंड बी वाला, हैज नो सिग्निफिकेंट एट ऑल, मतलब उसके लिए दूसरी वाली अनिवार्य नहीं है। रेजिडेंट होने के लिए अगर आप पहले फुलफिल कर रहे हैं तो आप रेजिडेंट हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें एक नोटिस करने वाला पॉइंट क्या है। मतलब आपने ये बता दिया कि ऑर्डनरी रेजिडेंट होना है अगर आपको, तो आपके लिए केवल 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर रहना मस्ट है। 182 दिन। ठीक, अब इसमें आप एक नोट करके लिखिए जरा। इट इज आल्सो नॉट नेसेसरी दैट, it is also not necessary that the entire stay should be one place. It may be different places in India. It
इन इंडिया, मतलब भारत में वो कहीं पर भी अगर रहता है और वो सारे दिनों को मिलाकर अगर 182 दिन हो रहे हैं तो दैट मीन्स ऑर्डरी रेजिडेंट। हमारे लिए एडिशनल में क्या कहा जा रहा है कि ऑर्डरी के लिए एडिशनल में क्या फुलफिल करना पड़ेगा। बेसिक में तो आपको क्लियर हो गया, दो में से एक, मतलब या तो वो 182 दिन रहे या दूसरी उन्होंने क्या बताया था, या तो इंडिया में 182 दिन के लिए इंडिया में कहीं स्टे करेगा, है ना। और दूसरी आपको बताएगी वो 4 ईयर वाला 4 साल में 1 साल प्लस 60 दिन प्रीवियस ईयर में, ठीक। अब एडिशनल में उसको क्या फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एडिशनल में बता रहे हैं आयोग की he has to satisfy both the following conditions besides satisfying any one of above the basic condition। मतलब ये एडिशनल की दोनों से फुलफिल करनी पड़ेगी ना, क्या लिखा, हाँ बोथ। एडिशनल में ऑर्डरी रेजिडेंट होने के लिए उसको दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, बोथ। इंडिविजुअल में बिकम ऑर्डरी रेजिडेंट इन इंडिया, ही हैज टू सैटिस्फाई द बोथ द फॉलोइंग कंडीशन बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त क्या बताया, सैटिस्फाइंग एनी वन ऑफ द अबव बेसिक कंडीशन। मतलब बेसिक में वो दो में से एक कोई फुलफिल कर दे, लेकिन एडिशनल की उसे दोनों फुलफिल करनी पड़ेगी, तब वो ऑर्डरी रेजिडेंट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ओवरऑल क्लियर क्या हुआ कॉन्सेप्ट कि बेसिक की एनीवन, एडिशनल बोथ। बेसिक का एनीवन और एडिशनल बोथ, दोनों को जब आप ओके करेगा वो, तब वो जाकर के क्या कहलाएगा, ऑर्डरी रेजिडेंट, ठीक है। एनी डाउट, एनीबॉडी। सेकंड, नॉट ऑर्डरी, हाँ रेजिडेंट का ही जो सेकंड पार्ट है, नॉट ऑर्डरी। ठीक है। अब देखिए नॉट ऑर्डरी कब होगा, वो पहले सुन लीजिए अच्छे से, फिर अपनी लैंग्वेज उसको राइट डाउन करिए, पहले समझ लीजिए अच्छे से। नॉट ऑर्डरी के उन्होंने कहा कि एनी इंडिविजुअल एसएसी है सेटिस्फाइंग एनी वन या बोथ बेसिक कंडीशन बट नो सेटिस्फाइंग एडिशनल कंडीशन, ठीक है। मतलब नॉट ऑर्डरी के लिए बताया जा रहा है कि जो बेसिक कंडीशन है उसकी दो है, ए और बी। अगर वो इनमें से एक ये या ये दोनों फुलफिल कर रहा है या एक फुलफिल कर रहा है ना। लेकिन जो एडिशनल है आपकी, एडिशनल की ए एंड बी क्लॉज कोई फुलफिल नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
ना पिछले 10 सालों में 2 साल वो रह रहा है, ना पिछले 7 साल में वो 2 साल रह रहा है, या प्रीवियस ईयर रेलेवेंट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो वो फिर कौन कहलाएगा? नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में क्या कह रहा था? एनीवन, बेसिक का एनीवन या बोथ, ठीक है, और एडिशनल मस्ट है, एडिशनल बोथ, यस सर। ठीक है। लेकिन अगर नॉट ऑर्डिनरी कंडीशन कैटेगरी को डिसाइड करना है तो उसके लिए आपको देखना होगा क्या? बेसिक बोथ या एनीवन, बट एडिशनल नो, नो सेटिस्फाइड। एनी डाउट एनीबॉडी? आई होप रेजिडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर हो। हम कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट। टाइप्स ऑफ रेजिडेंट में ही आता है एनआरआई। हाँ, ये भी आपने देखा, फ्लो चार्ट नहीं बनाया। टाइप ऑफ रेजिडेंस में 2 होते हैं, रेजिडेंट और रेजिडेंट ही एनआरआई है। और क्या? नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, एनआरआई नॉन ऑर्डिनरी नहीं, और नॉट ऑर्डिनरी तो इसकी कैटेगरी अच्छा रेजिडेंट। अच्छा, यस सर, यस सर। रेजिडेंट में 2 कैटेगरी, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। यस यस। इधर इंडिविजुअल कैटेगरी नॉन रेजिडेंट। बेसिकली 2 ही रेजिडेंट होते हैं, एक ये आपका ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी तो इसको इंडिकेट कर रहा है, रेजिडेंट को इंडिकेट कर रहा है ना। कैटेगरी तो 2 ही होती है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। लेकिन रेजिडेंट में उन्होंने 2 कैटेगरी बना दी है, एक ऑर्डिनरी और एक नॉट ऑर्डिनरी। ओके, एनआरआई में राइट डाउन कर लीजिए। इफ एन इंडिविजुअल satisfied, if an individual satisfies none of the basic condition A and B, ठीक, क्या कह रहे हैं? नहीं करना वो। तो इन दिस केस एडिशनल कंडीशन आर इररेलेवेंट, एडिशनल कंडीशन आर इररेलेवेंट। ही सेड टू बी एनआरआई, समझ रहे हैं आप? अगर वो बेसिक में से कोई एक या दो में से कोई भी फुलफिल नहीं कर रहा है, एनीवन या वो, सपोज दैट, और वो एडिशनल की अगर फुलफिल भी कर रहा है, वो 10 सालों में 2 साल भी रह रहा है और 7 साल में भी 2 साल रह रहा है, लेकिन इन दैट सिचुएशन इररेलेवेंट, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इनकम टैक्स का कहना है उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो उसको हम काउंट करेंगे किसमें? एनआरआई। हाँ, यस सर। ठीक है। जबकि देखिए आप नॉट ऑर्डिनरी में क्या कह रहे थे? नॉट ऑर्डिनरी में उन्होंने कहा बेसिक की कोई ना कोई एक फुलफिल करनी चाहिए उसको, ठीक है, और एडिशनल की भले वो ना फुलफिल करे तो वो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा। लेकिन एनआरआई में ऐसा नहीं कहा। एनआरआई में कहा कि जो अफोरसेड बेसिक कंडीशन है इट इज नॉट सेटिस्फाइंग ए एंड बी, ना ए फुलफिल कर रहा है ना बी फुलफिल कर रहा है, बट फुलफिल क्या कर रहा है? एडिशनल। तो उसमें हमने क्या लिखाया? इन दिस केस या इन सच सिचुएशन एडिशनल कंडीशन इस क्या हो जाएगी? इररेलेवेंट हो जाएगी, इज नॉट रेलेवेंट। ओके, आई होप अब आप इसके जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो सेक्शन ए में आ सकते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको बता भी दूं, तो ये जो आज हमने डिस्कस किया सिर्फ इंडिविजुअल का डिस्कस किया है अभी, इंडिविजुअल। अभी इसमें आपका एचयूएफ आएगा, फिर उसके एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और एक कंपनी आएगा, और एक आएगा एवरी अदर पर्सन। हाँ, इनके बारे में भी और इन्फॉर्म करना आपको। पार्टनरशिप का आयोग इसी में आना चाहिए, ये जो अदर वाला जो
डिवाइड कर रखा है, अदर वाला। तो वो पर्सन होता है इसमें कंपनी में ग्रुप ऑफ पर्सन हो जाएगा। हाँ, कंपनी में ग्रुप ऑफ पर्सन होगा। हिंदू उसमें तो एक कमेटी हो जाएगी। वो अदर में आ जाएगा बेटे। अब आप एक क्वेश्चन राइट डाउन करिए जरा। लिखिए अ जर्मन इंडिविजुअल, जरा लिखिए बेटे। A German individual having remained in India for 15 years left for Germany in March 2017. In March 2017, 2017, and come back to India September 2019. तो ये जो प्रीवियस ईयर आपका 19-20 है, इससे आप इसको काउंट करना शुरू करिए, देखिए कितने पीरियड ये रहा है। जर्मनी में रह रहा है ना? नहीं, लेफ्ट करके आ गए ना 17 में। आप देखिए रिमेन्ड इन इंडिया फॉर 15 years, लेफ्ट फॉर जर्मनी इन मार्च 2017। हेलो, फर्स्ट ईयर, हाँ बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ लेंगे और देखिए जरा फटाफट देखिए, बातें मत करिए। अबे क्या कर रहे हो? क्वेश्चन लगाओ जल्दी से। मैंने क्या इंफॉर्मेशन कुछ दिया आपको? देखिए प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा वो? 30 सितंबर 2019 टू 31 मार्च 2020। इस पीरियड में कितने दिन रहा वो? मतलब मोर देन 182 डेज ना? यस सर। मोर देन 182 डेज हुआ कि नहीं हुआ? तो ही है नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट तो वो है नहीं, ये तो डिसाइड हो गया ना पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डिसाइड कर लिया कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। नॉन तो तब होता है जब वो बेसिक की कोई फुलफिल ना करता, ए और बी। उसने एक फुलफिल कर ली 182 डेज वाली, तो ये तो डिसाइड हो गया कैटेगरी की ही इज अ रेजिडेंट। अब बात आती है कि रेजिडेंट में कौन सा है, वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। अब ये डिसाइड करना है आपको, करिए। और बेसिक कंडीशन फॉलो कर रहा है। नहीं, बेसिक की तो कर रहा है, एडिशनल की भी कर रहा है। 729 डेज है ना? मतलब पिछले 10 सालों में 2 साल और पिछले 7 सालों में 2 साल।
तो वो कौन सा हो गया? ऑर्डिनरी, है ना? नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या था? सर नॉट ऑर्डिनरी के लिए जब बेसिक कंडीशन कोई नहीं, जबकि वो एडिशनल की फुलफिल कर रहा है दोनों कंडीशन, और उधर ऑर्डिनरी की एक फुलफिल कर रहा है वो, तो कौन सा हो गया? वो ऑर्डिनरी हो गया। करेक्ट। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डिसाइड द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे ऑर्डिनरी, तो फिर आपको देखते हैं रेजिडेंट डिसाइड कर लेंगे, तो आप डिसाइड करना पड़ेगा क्या आपको? ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी। सर ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 3 मार्क्स। 3 मार्क्स बस ऑर्डिनरी लिखने का। बस सिर्फ इतना डिसाइड करके बताना है, कंप्यूट करके दिखाना होगा कि कैसे कैसे डेज आपने कंप्यूट किए हैं। कंप्यूट करना है। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो हम मान के चलेंगे कि आपने नकल कर ली किसी की, लेकिन अगर आप बाकायदा उसको वैल्यूज डेज को दिखाएंगे कि हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20, करंट ईयर है 20-21, और हमें काउंट करना है प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर में सर वो इतने पीरियड से इतने पीरियड तक इतने दिन रहा, और उसके पिछले 10 सालों में या पिछले 7 सालों में वो इतने दिन रहा। तो जब आप कंप्यूट करके उसको शो करेंगे ना डेज वाइज, आई वो 3 मार्क्स इज गिवन। मतलब उसमें हम 2 भी नहीं दे सकते आपको। अगर थ्योरेटिकल होता तो मैं 2 देता आपको, चाहे कितना भी सही लिखिए गलत लिखिए, 2 तो मिलना ही होना है ना। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं कि आप बकवास लिखेंगे तो 2 मिलेगा, कटेगा तो 0 भी मिलेगा। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन देने का सिर्फ एक मतलब था कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हमें कंप्यूट करना है। तो हम अपना बेस बनाएंगे कौन सा? प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर से हम ये देखना शुरू करेंगे कि वो कितने पीरियड रह रहा है। पहले रेलेवेंट प्रीवियस ईयर लेंगे, फिर उसके प्रीसीडिंग 4 ईयर लेंगे या 10 ईयर लेंगे या 7 ईयर लेंगे। ओके, एनी डाउट? नो सर। Then you have decide resident, non-resident. First of all, you have decide the resident या non-resident. Suppose the resident, then you have decide ordinary or not ordinary. Okay. तो अभी कल में भी ये टॉपिक भी और चलेगा। कल क्लास है आपकी, कल थोड़ा वक्त से लेने की कोशिश करेंगे, आज लेट हो गए। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।